अरे यार नीचे हो जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ यार। हेलो नीचे बैठ जाओ भाई, हेलो नीचे हो जाओ यार। अरे भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। अरे चुप रहे यार, जा रहे हैं रास्ते में जाने में हो जाएगा। थोड़ा सा भैया आगे निकलने देना, मैं थोड़ा आगे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, निकल बढ़ जाओ बढ़ जाओ, आगे आगे हो जाओ भैया, आगे बैठो ना, हो गया बस। भैया नीचे बैठो, नीचे बैठो, भाई नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ भाई। नहीं मैं बाजी युत योत गुजर बायन दिवान नई खसन क्या इजाजत तिमन दिवान कहें यह चौपान बायन इजाजत दिवान नई खसनस क्या जुलम सारे खतर यह सारे खतर यह पहलगाम कन खतर यह जुलम अत नीचो संजीद नोटिस वापस वापस मकसद पहलगाम त्रावन यल टूरिस्टन बैठ जाओ भाई। जबार सबज माइक की लगाए नहीं अभी, वैसे लोग लोगों से मिल रहे हैं। भाई लगा नहीं उधर क्यों जाएंगे, ये आगे जाएंगे, ये थोड़ा आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ थोड़ा सा, आप लोग साइड रास्ता दीजिए। बहुत जरूरी है हमारा, हम पीछे रह गए, थोड़ा थोड़ा आगे करने जाने दीजिए हमें। माइक रखे भाई, माइक सबने माइक सही सही छोड़ दूं। बच्चे बेकार पढ़ाई कुछ नहीं। आइडिया वायर छोटा है ना, हमारा नहीं जाएगा। चलिए जा ठीक भाई, मोबाइल नीचे। अच्छा ठीक अरे हटेगा तब तक करें आगे, वो बोर्ड में बात करेंगे। हाँ हटा के फिर आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा आगे। चलिए आ जाए। हजार बाहर मुझे खुद अच्छा जगह नहीं है, आगे बन गया देखो, थोड़ा सा उड़ जाओ, पैर खाली टोटल ये पैर मे वनस बाखदा बार वनस वदन मतलब यह दरिंदगी मतलब हैवान शाल वोल गड़ वोल फोटोग्राफर खरगोश कह तोते फोटो तुल तथन
اسی کوٚر تتہِ مطلب أسۍ کھٔتۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ روڈ اَسہِ کٔرۍ ریسکیوٗ وٕنکیٚنس وۄنۍ چھِ اَسہِ سختی مطلب وۄنۍ چھِ أسۍ دپان اگر تھوڑا سختی تہِ ٲس روزگار گوٚژھ تھوڑا پکُن مطلب اگر سکیورٹی تھاوہن اَسہِ گوٚژھ روزگار پکُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کھٮ۪تھ ہٮ۪کہو کینٛہہ سکیورٹی چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِم کیٛازِ چھِنہٕ جناب جہاز یہِ سیاحن پوینٹن پٮ۪ٹھ آروٕ کیٛازِ چھِ نفر ژور تتہِ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ باشندس نفر ژور ژندوار کیٛازِ تھایہِ نہٕ یِم نفر ژور اگر پتہ گژھِ ہا کٲنٛسہِ سکیورٹی چاہے سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ اگر بے خبر آسہِ دپہِ ہا بہٕ تُلہٕ تلوار بہٕ وانکھ شرافتس تتہِ کُس سکیورٹی 7 लाख سکیورٹی کٔشیٖرِ منٛز چھِ وہ کس کے لیے ہے پھر میں عمر عبداللہ کو بولتا ہوں وہ آپ نے سکیورٹی رکھا ہے سادہ ہندوستان کو بول رہے ہیں مودی جی کو بول رہا کہ 7 लाख فوجی ہیں یہاں وہ کس کے لیے ہے اچھا وہ کس کے لیے پھر جب وہ ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے حفاظت کے لیے کس کے کام کے لیے جوڑ فل مائک آگے خاموشی آپ اگر خاموشی کرو گے تو بات کر سکتے ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہاں میڈیا کے بہت سارے اس وقت لوگ پریزنٹ ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلگام نہ صرف اس لیے مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے بلکہ اس لیے مشہور ہے پہلگام نے جب ملیٹنسی پیک پہ تھی جب حالات یہاں بہت خراب تھے تب بھی جموں کشمیر کے بھائی چارے کو زندہ رکھا کیونکہ کبھی بھی جو امرناتھ جی کی یاترا جاتی ہے وہ ان لوگوں نے اس کو زندہ رکھا انہوں نے لوگوں کو گھوڑے پہ لے کے گئے پالکی میں لے کے گئے کندھوں پہ اٹھا کے گئے اور جب ملیٹنٹ کی بندوق ایک طرف سے دوسری طرف سے ہماری اپنی بندوق کے دوسری طرف سے ہر طرف سے مشکلات تھے اس وقت انہوں نے یاتریوں کی دیکھ بھال کی مجھے یاد ہے 1 سال بڑا طوفان آیا انہی لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی پناہ دی تو آج یہ جو ثانیہ ہوا ابھی 22 تاریخ کو اس کا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اگر افسوس کسی کو ہے تو وہ یہاں پہلگام کے لوگوں کو ان کے لیے وہ شوق تھا ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے آنکھوں سے وہ بے دردی سے ہمارے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کوشش کی جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا سکے جس کے لیے ایک عادل شاہ ہمارا شہید وہاں ہو گیا جان بچا اپنی دے دی اس نے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے کندھوں پہ لایا ہسپتال لے گئے خون دیا سب کچھ کیا مگر آج جو میں یہاں سن رہی ہوں جو میں نے دیکھا جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو وہاں مزدوری کر رہے تھے کوئی چائے بیچ رہا تھا کوئی شال بیچ رہا تھا کوئی دوسرا کوئی فوٹوگراف لے رہا تھا انہی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے انہی لوگوں کو سویرے تھانے پہ بلایا جاتا ہے دن کو بھوکا رکھا جاتا ہے شام کو واپس بھیجتے ہیں گھر تو یہ کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں میری ہوم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کشمیریوں نے اس بار دکھا دیا کہ وہ خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے وہ ملک کے غم میں پوری طرح سے شریک ہے آپ کو کارروائی کر رہی ہے ہم نے 1000 بار کارروائی کر لیجیے آپ اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجیے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی حرکت کی مگر جو کشمیری جس نے اپنا خون دیا جس نے اپنے کندھوں پہ ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے جس نے اپنی جان دی تو آپ نے ابھی اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پورے کشمیر میں بند ہے جس میں پہلگام میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جو بند ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر ٹورسٹ یہاں آ رہا ہے اس وقت وہ پہلگام آتے ہیں تو یہاں پہلگام سارا بند ہے چندن واڑی بند ہے آڑو بند ہے باقی جگہ بند ہے تو جب ہمارا ٹورسٹ اس وقت اتنی بہادری سے ملک کے سے یہاں آتا ہے وہ کلیجہ اپنا پتہ نہیں کس چیز کا بنا کے یہاں پہنچتا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ میں ڈرا نہیں ہوں تو آپ نے اس کا سب کچھ یہاں بند کر دیا ہے
तो फिर आप उनको वहां बताइए, फिर आप उन सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुंच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहां पर, ताकि ये लोग जो वहां से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहां फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहां से इतने दूर से अब आते हैं तो यहां से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं, या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता, जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है। खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है, और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है, ट्राइबल जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है। हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सवाल कर सकते हैं पर हम कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हो गया इसमें हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराएं। अगर सिक्योरिटी तो ठीक है, मगर ये बेचारे बकरवाल कहाँ जाएंगे? ये अपनी भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाएंगे? जम्मू से लेके आ रहे हैं, इस वक्त जंगलों में इनको जाने नहीं देते हैं। इन पे इल्जाम लगाते हैं जी आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो। इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? कि आप कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कॉपरेट करने के लिए तैयार है कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए। एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया, बहन के साथ गया, बहन को वापस भेजा गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम में टंगमर्ग में एक हादसा हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज देते हो। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ, वो जो अल्ताफ नहीं, जो अल्ताफ था वहां का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था, जिसको आपने कहा वो पुलिस स्टेशन गया, बोला एनकाउंटर में, उसके बच्चे 2 बेटे हैं। मुझे बताओ उनको क्या करोगे आप कल? ये जो कल आपने इसको मागरे को वहां उसकी लाश दरिया में, उसका छोटा भाई है, उसको क्या करोगे आप? मुझे बताओ क्या करोगे? कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? उसने भी, वो जो आदिल जिसने अपनी जान दे दी, हापतनाड़ का आदिल शाह जिसने जान गंवा दी बचाते बचाते, तो ये तो सब आदिल शाह हैं। उसको तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, इनको भी जो इनसे बन पड़ा इन्होंने कर लिया। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं,
आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। और मेरी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो बांडीपोरा में हादसा हुआ, बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था। आप किसी को भी OGW का नाम देके उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज को उधर मार दिया, वो भी बहुत गरीब है। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेगी, कम से कम इन फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप मालिक हैं। अगर आप भी वही करना चाहते हैं जो आज से कई साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान आया था हमारे अलाहिदी की पसंदों के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। वो मौका था उनके लिए। आज आपके लिए मौका है होम मिनिस्टर साहब। आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ। आज वो अपने जख्मों का मरहम करना चाहता है और आपके जख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है, मगर उसको जख्म मत दीजिए। अगर आपने उसको जख्म दिए तो फिर हम कहीं ये मेल कभी नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे, जो मीडिया के लोग आए हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ये सब कश्मीरी ये दहशतगर्द नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, शाना बशाना चलना चाहते हैं। अब हादसा वो इनके हाथ में तो नहीं था बेचारों के, ये क्या कर सकते थे? जब बंदूक सामने होती तो क्या जो उनसे बन पड़ा किया। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ की सरकार से तो मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि उनको आप ज्यादा बोल सकते हो, आप उनके वोटर हैं, मगर मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसमें इंटरवीन करे। एक जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसके लिए जो जगह बंद की है वो बंद नहीं, या तो फिर आप पहलगाम को बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है, फिर सारा बंद कर दीजिए। मगर जो पहलगाम तक बेचारा टूरिस्ट आता है तो उसको आप ये जगह बंद करके उसको आप मायूस करते हैं, ये मत कीजिए। दूसरा, पोनी वालास के लिए कोई पैकेज, और तीसरा ये जो इंटरेस्ट है कम से कम 1 साल का सूद माफ कर लीजिए। जो होटल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है यहाँ, गाड़ी टैक्सी वगैरह, और ये जो हमारे ट्राइबल्स हैं गुजर बकरवाल, इनको आर्मी को डायरेक्शन दे दीजिए कि ये इनको जंगलों में जाने से रोके ना। और तीसरा, ये जो 2 मेरे हिसाब से एलिज्ड किलिंग्स हो गई हैं, चाहे बांडीपोरा का अल्ताफ है या कल का टंगमर्ग का इम्तियाज है, उनको कंपनसेशन दे दीजिए तब तक जब तक इंक्वायरी सिर्फ इसलिए करनी है कि जो मुल्जिम है उनको सजा दे, मगर कंपनसेशन इनकी फैमिलीज को इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नो मीडिया, नो माइक। Madam, एक question. Local partial inquiry and truth will come out. You're not satisfied with those footage, ma'am? No. There has to be an inquiry so that the truth comes out and the family then should be compensated because they have labelled him as OGW and then they labelled as OGW. You have to kill him. Ma'am, this time the shooters were looking at train.